watching Chinmay's Viscos. Today we will discuss about some numericals based upon different types of current carrying elements. So here I have the tricks which we will be using during the solving of the numericals. See, first trick you have to remember, we have already discussed about all these in details. I will provide the link to the playlist of this particular topic. You can see it in the description box. So here I have first one, magnetic field due to an infinitely long conductor at any point which is situated at particularly in this type of area. So here magnetic field is equals to mu naught by 4 pi twice of I divided by A. A is the distance of the point from the conductor. Now in second case, here the point lies at one end of the conductor and the conductor is infinitely long. So here I get B equals to mu naught by 4 pi I by A. And the third one, if any arc is given, you have to consider the theta. Theta is the angle made by the arc at the center or at the point where the magnetic field is to be calculated. Okay. So here the formula is B equals to mu naught by 4 pi I by R multiplied with theta, and you have to take theta in radian because here we are using pi. On the axis of the current element, B is always equals to 0. ये हमने बार्ड-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में देखा था, उसके स्पेशल केसेस में देखा था. ठीक है, तो now we will use all these four type of concepts to solve the numericals of different types. So you have to remember these four things for solving this type of numericals. And clearly this video is very important for entrance point of view. If you are appearing for JEE or NEET, or also if some students they are applying for MSc entrance examination, and these are also applicable for NET, CSIR, NET aspirants, GATE aspirants, because these concepts are very important in the field of magnetostatics. Clear? So let's start our discussion. I have the first question. इस टाइप का कुछ कंडक्टर आपको दिया गया है और at point O you have to calculate the net magnetic field due to this type of structure, and this structure contains the current I. So let's find out. इसे हम लोग कैसे करेंगे, जितने भी ब्रांचेस होंगे हम लोग उसे अलग अलग तरीके का नाम देंगे और ईच ब्रांच के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा उसे पहले डिसाइड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे मैं एक कन्वेंशन ले रही हूँ, field आ रहा है perpendicularly inward, that will be taken as positive, and if the field is perpendicularly outward, that will be taken as negative. इस कन्वेंशन को लेके मैं अभी सॉल्व करूंगी इसे. देखिए यहाँ पे मुझे दो ब्रांचेस दिख रहे हैं, जैसे कि ये एक पूरा एक लंबा कंडक्टर है, लेकिन ऐसे थोड़ा उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है, तो ये एक ही कंडक्टर है और ऐसे आके फिर इस तरफ स्ट्रेट हो रहा है. ठीक है, तो अभी ये वाला मेरा जो है ये है ब्रांच 1 और ये हो गया मेरा ब्रांच 2. क्लियर? मैं अभी ब्रांच 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी, तो मैं लिख रही हूँ B1. B1 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच. देखिए ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये वाला जो पॉइंट है ये इसके बीचों बीच कहीं पे आ रहा है, तो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है अभी. तो नाउ B1 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2I डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मुझे अभी रेडियस कुछ दिया गया नहीं है, आप लोग अगर ऑप्शंस दिए गए होंगे तो ऑप्शंस में से देख लीजिएगा वो R दिया गया है या X है या A है. मैं यहाँ पे सपोज ले रही हूँ ये वाला मुझे A दिया गया है. A दिया गया है. ठीक है, तो अगर इस तरफ A है तो इस तरफ भी ये A ही होगा, ये वाला डिस्टेंस. सो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I डिवाइडेड बाय A. ठीक है, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड. करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है तो मैं इसे राइट हैंड में ऐसे पकड़ूंगी, तो इस तरफ फिंगर्स अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब ये O के पास बाहर आ रहे होंगे. अगर बाहर आ रहा है तो मैं डॉट दूंगी, उसे सिंबलाइज करूंगी ऐसे डॉट लिख के. तो B1 has this much of magnitude and it is perpendicularly outwards. Now what is B2?
B2 विल बी इक्वल्स टू, अभी एक आर्क आ रहा है तो आर्क आएगा तो मेरा फॉर्मूला क्या है, μ0 बाय 4 पाई I बाय रेडियस, रेडियस यहाँ पे a दिया गया है तो a इनटू द थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियन, हियर थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये एक सर्कुलर है ना आर्क, तो थीटा हियर इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो मेरे पास अभी ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अभी मैं देखूंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, करंट इस तरफ जा रहा है तो मैं इस तरफ उंगलियां घुमाऊंगी तो थंब इरेक्ट करूंगी तो दैट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, सो दिस वन इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या आएगा, B विल बी इक्वल्स टू, मेरे कन्वेंशन में मैं इनवर्ड फील्ड को पॉजिटिव ले रही हूँ, सो B2 माइनस B1 नेट फील्ड आएगा, तो B2 प्लस ऑफ माइनस B1 लेंगे हम लोग, आउटवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया B2 माइनस B1, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I बाई A मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2I डिवाइडेड बाय A, इसे थोड़ा सेट करके लिख लूंगी, देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई ये बाहर आ रहा है 2I बाई A, 2I बाई A, 2I बाई A भी बाहर आ रहा है तो मुझे मिल रहा है पाई माइनस 1, पाई माइनस 1 मतलब ये जो पाई है ये तो पॉजिटिव है ना, 3.14 है, 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ B2 बिकॉज हियर B2 इज ग्रेटर देन B1, तो उसका डायरेक्शन क्या आएगा, फिर इनवर्ड आएगा जो B2 का डायरेक्शन होगा। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर एग्जांपल। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज गिवन, सो यहाँ पे करंट भी जा रहा है I, लेकिन हमें इस डायग्राम में दो तरीके के आर्क दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला है जिसका रेडियस दिया गया है R1 और एक छोटा वाला है इसका रेडियस दिया गया है R2। अभी मेरा काम है कि मैं इसे ब्रांच में डिवाइड करूंगी, देखिए सपोज ये वाला हो गया मेरा ब्रांच 1, तो ये कंडक्टर आएगा ब्रांच 2, ये हो गया 3 और ये हो गया ब्रांच 4, ठीक है। तो मेरे पास अभी 4 मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, क्या क्या निकलेंगे, पहले मैं निकालूंगी B1 क्या आएगा, आर्क है तो मैं फॉर्मूला ले रही हूँ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय रेडियस लेना होता है, यहाँ पे रेडियस है R2, टू मल्टीप्लाइड विथ थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियन, ये एक सेमी सर्कल है तो पॉइंट O पे इसका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, पाई रेडियन, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पाई, ठीक है। यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अंदर आएगा इनवर्ड, तो डायरेक्शन मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी B2 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, B2 देखिए ये जो करंट एलिमेंट है यहाँ पे इसके एक्सिस के ऊपर आ रहा है पॉइंट O, तो ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट एलिमेंट B is equals to 0, तो B2 here will be equals to 0. Now what is B3? B3 equals to mu naught divided by 4 pi I divided by R2 की जगह पे अभी मैं लिखूंगी R1 क्योंकि मैं अभी बड़ा वाला आर्क ले रही हूँ, ये वाला, तो R1 मल्टीप्लाइड विथ वो भी सेमी सर्कल है, इसके लिए थीटा की जगह पे आएगा पाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B3, इसमें देखिए करंट जो जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब इरेक्ट करूंगी तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर, तो यहाँ पे इनवर्ड। क्लियर? नाउ व्हाट इज B4, B4 इज इक्वल्स टू, देखिए अगेन एक्सिस के ऊपर आ रहा है, करंट एलिमेंट के एक्सिस के ऊपर आ रहा है पॉइंट, इसलिए B4 is equals to 0. So instead of 4 magnetic fields, here we are actually getting 2 types of magnetic fields and both are inward in direction. So net magnetic field, तो net field B will be equals to, मेरे पास आएगा B1 plus B3 क्योंकि B2 4 तो और B4 तो 0 हो गया, तो B1 plus B3 म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I मल्टीप्लाइड विथ पाई, बोथ में कॉमन है I पाई, ठीक है। इसमें है 1 बाई R2 प्लस इसमें है 1 बाई R1, सो दैट इज इक्वल्स टू पाई पे अगर कैंसिल हो रहा है म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विथ
1/r1 प्लस 1/r2, और ये दोनों इनवर्ड है तो नेट फील्ड भी आएगा इनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया गया है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं और एक ही आर्क है। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस में ले सकती हूँ। सपोज ये है 1, ये है 2 और ये है 3, थर्ड वन। ठीक है, अभी ये दो कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया गया है d/2। तो यहाँ पे मुझे इतना पोर्शन कितना मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू d/2। तो यहाँ पे जो सेमी सर्कुलर आर्क मुझे दिख रहा है उसका रेडियस में ले सकती हूँ d/2। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज b1। b1 will be equals to, see here the point O is given at one end of the conductor, straight conductor। तो स्ट्रेट कंडक्टर के एक एंड में अगर दिया गया होगा पॉइंट, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I/a। तो नाउ आई एम राइटिंग μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय a होता है distance of that point from the conductor। So here distance of that point from that conductor will be equals to d/2। ठीक है, now what is b2? b2 अभी तो arc आ गया, तो arc के लिए मेरे पास फॉर्मूला है μ0 by 4 pi I डिवाइडेड by the radius। Radius here is equals to d/2 multiplied with theta, and theta should be in radian। ये सेमी सर्कल है तो थीटा की जगह पे मैं लिख रही हूँ पाई। हाँ, मैंने एक चीज यहाँ पे छोड़ दिया। देखिए, अगर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, और B1 का डायरेक्शन क्या होगा ये मैंने डिस्कस नहीं किया। देखिए B1 थंब इस तरफ ले रही हूँ मैं, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड होगा। लेकिन पॉइंट O पे क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यहाँ से अंदर जा रहा है मतलब ऐसे सर्कल घूम के यहाँ से बाहर आ रहा होगा, तो इसका जो डायरेक्शन है वो हो गया आउटवर्ड। अभी B2 का डायरेक्शन क्या है, देखिए ये इस तरफ आ रहा है, मैं फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हूँ और थंब इरेक्ट कर रही हूँ, तो थंब इरेक्ट करने से मुझे ये आउटवर्ड मिल रहा है, तो ये भी आ गया आउटवर्ड। अभी देखेंगे B3 क्या आएगा। B3 विल बी इक्वल्स टू अगेन द सेम केस, एक कंडक्टर का एंड में आ रहा है पॉइंट, तो μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I divided by also here d/2, but what is the direction of the magnetic field? ऐसे मैं थंब रख रही हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो घूम के इस तरफ वो बाहर आ रहा होगा, तो पॉइंट O पे वो बाहर होगा, तो ये हो गया आउटवर्ड। ये तीनों के तीनों आउटवर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर B विल बी इक्वल्स टू, तीनों सेम डायरेक्शन में है तो मैं ऐड कर रही हूँ B1 प्लस B2 प्लस B3। अगर इनवर्ड आउटवर्ड बोथ दिया गया होगा तो इनवर्ड को पॉजिटिव लेना है, आउटवर्ड को नेगेटिव लेना है। यहाँ पे तो सारा का सारा आउटवर्ड आ रहा है तो मैं उसे ऐड कर देती हूँ। सो दैट इज इक्वल्स टू μ0 by 4 पाई I डिवाइडेड बाय d/2। ये तो कॉमन है सब में, देखिए I डिवाइडेड बाय d/2, I डिवाइडेड बाय d/2, I डिवाइडेड बाय d/2, तो इतना पार्ट मैंने कॉमन ले लिया। तो पहले में क्या बचा अभी 1 प्लस, दूसरे में क्या बचा पाई प्लस, तीसरे में क्या बचा 1। ठीक है, तो नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू μ0 by 4 पाई 2I by d मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस पाई, एंड इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर अ डायग्राम इज गिवन लाइक दिस। मैंने इसको अभी नाम दे दिया है। देखिए ये वाला मेरा पहला पार्ट, सपोज मैं इसे ले रही हूँ, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, देन एक बिग आर्क इज देयर, देन a straight conductor again, and then a small arc is here, and the current flowing in the circuit is I। clear? so suppose ये वाला पार्ट मैंने 1 लिया है, तो अभी इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी एट पॉइंट O। यहाँ पे दो तरीके के आर्क्स दिए गए हैं। छोटा वाला आर्क जो है उसके लिए रेडियस है r1, और बड़ा वाला आर्क के लिए रेडियस है r2। तो b1 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, b1 मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। क्यों? बिकॉज देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडक्टर के लिए ये जो पॉइंट O है दैट कम्स ऑन द एक्सिस ऑफ द करेंट एलिमेंट, तो नाउ आई एम यूजिंग द ट्रिक 4, सो b1 इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज b2? b2 हो गया तो आर्क आ गया, आर्क के लिए मैं ले रही हूँ ट्रिक 3, so μ0 by 4 pi I divided by the radius,
The radius for the big arc is r2 and it is a semicircle, तो angle आएगा इसके लिए pi at the center O. And what is the direction of the magnetic field? इस direction में मैं move कर रही हूँ, तो थंब यहाँ पे क्या आएगा, inward आएगा, तो B2 is equals to this much and the direction is inward. What is B3 again? Again B3 एक straight conductor आ रहा है, again उसके axis के ऊपर आ रहा है point O. So that's why the magnetic field at point O due to this conductor will be equals to 0 by using trick number 4. And now again come to B4, which is again a semicircular arc but with a smaller radius r1. So mu naught by 4 pi I by r1 pi, and using the right hand thumb rule its direction is outward. तो एक है इनवर्ड, एक है आउटवर्ड, इसे मैं पॉजिटिव लूंगी, इसे मैं नेगेटिव लूंगी, तो B2 माइनस B4. B2 माइनस B4 में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पाई, इतना तो कांस्टेंट है तो उसे मैंने बाहर रख लिया. यहाँ पे आएगा 1 बाई R2, यहाँ पे आ रहा है 1 बाई R1, सो 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विथ 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1. ठीक है. Now next we will discuss about another example. Now in this example we have this type of figure. Current I is flowing in this circuit and here I am encountering 3 sections. ये वाला है एक straight conductor, तो ये है मेरा section 1, ये हो गया section 2 और ये हो गया section 3. यहाँ पे basically 2 straight conductors है और एक arc है. तो पहले मैं निकालूंगी व्हाट इज B1. B1 विल बी इक्वल्स टू, देखिए ये जो पॉइंट O है इस एक्सिस के, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस के ऊपर है पॉइंट O, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 0. देन व्हाट इज B2. B2 तो आर्क आ गया, तो मैं लिख रही हूँ म्यू 0 बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाय रेडियस इज गिवन R मल्टीप्लाइड विथ थीटा. थीटा शुड बी इन रेडियन. देखिए यहाँ पे ये वाला जो एंगल है जो आर्क के बाहर है, ये वाला एंगल है पाई बाई 2, तो ये आर्क जो एंगल कर रहा है यहाँ पे अंदर वो कितना आएगा 3 पाई बाई 2. एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन. देखिए ये वाला थंब मैं यहाँ पे इरेक्ट कर रही हूँ विथ फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मुझे मिल रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन. नाउ व्हाट इज B3. B3 इज अ केस 2, क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के एक एंड पे आ रहा है पॉइंट O, तो आई एम यूजिंग द ट्रिक 2. तो B विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस हियर इज R. एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो मैं थंब इस डायरेक्शन में रख रही हूँ, तो फिंगर्स इस तरफ अंदर जाएंगे तो इस तरफ बाहर आ रहे होंगे, तो पॉइंट O पे डायरेक्शन होगा आउटवर्ड. So what will be the net field? So net field B will be equals to B2 plus B3. B2 आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई R, ये तो कॉमन है, और यहाँ पे है मेरे पास 3 पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और इसका वैल्यू डायरेक्शन आ जाएगा आउटवर्ड. तो म्यू 0 बाई 4 पाई I बाई R 3 पाई बाई 2 प्लस 1. This will be the magnitude of the magnetic field with the outward direction. इसके साथ तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस कर लिए हैं एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग को इसमें से कुछ बेसिक आइडियाज़ मिल गए होंगे. इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टाइप, you can follow the books S.L. Arora and Pradip's Physics, which are prescribed for basically +2 science students. You can go through them and you can clarify your concepts also there. If you have any doubt, you can convey me in my comment section. So I will come with a new video very soon. Till then, stay happy, stay healthy. Thank you.